Welcome back to my YouTube channel. Today I am recording a video on the conditions prevailing around and what to do in this condition. Should we stay away from investing? Should we invest more? These are very important questions to be addressed in the given market conditions. People keep on calling, they keep on writing to us saying that the prices of blue chips, company like Asian Paints, company like Abbott Pharmaceutical, company like Bajaj Finance, they have fallen a lot. 15 to 15% in some of the cases, the fall could be. Friends, I would like to communicate to you, stock market investment is a risky affair and you should have a big heart to really get into a stock market. जब तक आपके पास हिम्मत नहीं है, आप अच्छे तरह से रिस्क नहीं ले सकते, मेरा एडवाइस यह होगा कि स्टॉक मार्केट से आप दूर रहें और अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करें. लेकिन अगर आपको विश्वास है, फ्यूचर में विश्वास है, इन कंपनियों में विश्वास है, अपने एडवाइजर के एडवाइस पर विश्वास है, तो बने रहे और आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. आज मैं इस वीडियो में आपको एक उदाहरण दूंगा जिसमें मैं दो ब्लू चिप स्टॉक्स को एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा कि अगर लास्ट फॉल में भी आप इसमें बने रहते तो आज कितना गेन संभव था. और मैं बहुत विश्वस्त हूं कि जिस तरह से यूक्रेन वार के चलते आज की जो स्थिति है, इसमें अगर आप पैनिक न हो और इन्वेस्ट करें तो एक ऑलमोस्ट एक गारंटी है कि आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. I would like to say here that the stock investment is risky and before investing, please do enough research or consult your investment advisor. This video is purely for educational purposes. What to do in the falling market? Let's take two examples and see what happens. I have been talking about long-term investment from a perspective of 5 to 10 years. So let's look at two stocks, Asian Paints and Bajaj Finance. These two are blue chip stocks, and the recent times when the COVID started, the market took a big beating. Everybody was nervous. So if you look back, in March 20, the Asian Paints was trading at about 1560 rupees. And today, even after the reaction in the market, even after the price correction due to Ukraine war, still trading at 2800 plus. So if somebody who invested near about 1600 in less than 2 years time in the depressed market condition, also the stock has multiplied almost 2 times. Let's move forward and look at Bajaj Finance. Now at the same time, the Bajaj Finance was trading at about 1600 rupees actually. And today, Bajaj Finance rate is 6,400. So in 2 years time, it has multiplied almost 3.5 times, 4 times. So what I'm trying to communicate here, friends, whenever there is a big change happening in the environment, market corrects, and that is the time not to get panicky and to start accumulating the blue chips. जैसा कि आपने देखा कि दो स्टॉक एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस में अगर कोविड के टाइम में और जिस समय कोविड हिट किया इंडिया को, उस समय एक बहुत बड़ा फॉल था, एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन था और लगता था जैसे स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा. हर लोग बाजार से बाहर भाग रहे थे. लेकिन जिन लोगों ने उस समय इस दो स्टॉक में, अदर ब्लू चिप स्टॉक में, जैसे बजाज फाइनेंस है, एबॉट लैब है, एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट है, पेज इंडस्ट्रीज है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, इसमें कोई अगर इन्वेस्ट किया उस समय तो ऑन एन एवरेज 2 से 5 गुना तक 2 साल के अंदर इसमें बढ़ोतरी हो चुका है. तो उसी तरह से यह लगता है कि आज जो रशिया यूक्रेन वार के चलते जो विश्व में पैनिक हुआ है, जो पेट्रोल के प्राइसेज ऊपर गए हैं, फ्रेंड्स, ये प्राइस वहाँ नहीं रहने वाला है. वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा अगर 2 साल तक ऐसे प्राइस रहा तो. इसका मतलब क्या है कि ये कंट्री होश में आएंगे, आपस में बात करेंगे
और $120 जो क्रूड का प्राइस है पर बैरल, वह गिरकर फिर 70-80 के आसपास आ जाएगा। प्रश्न है कि अगले 2 महीने या 3 महीने कितने समय में होता है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह पक्का होगा। अगर इस पर आप विश्वास रखते हैं तो यह चीज अपने को मानकर आगे चलना चाहिए कि जब भी इस तरह का पैनिक सिचुएशन हो, आप ब्लू चिप स्टॉक्स और व्हाट आई कॉल इट फॉरएवर स्टॉक से दूर ना भागे। उसमें बिटवीट करके थोड़ा थोड़ा अगर इन्वेस्ट करते रहें तो आप एक बहुत अच्छा गेन अपने घर ला सकते हैं। इसलिए मेरा एडवाइस यही रहता है इन चीज़ों पर। और मैं स्वयं क्या करता हूं कि जब भी प्राइस फॉल होता है, जितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है, अपने फाइनेंशियल स्थिति को बैलेंस करते हुए, स्थिति को देखते हुए आप एक स्ट्रेटजी डिसाइड कर ले। सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें और हर फॉल में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहे, ताकि फॉल का एडवांटेज आपको मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जब प्राइस गिरता है, लाइक लेट्स से एशियन पेंट्स का प्राइस 3600 रुपये तक गया था, जब प्राइस गिर के 3300 हो गया, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके पास जो भी पैसा है उस पर डाल देते हैं। उनके पास इतना कुछ नहीं बच जाता कि अगर फर्दर प्राइस फॉल होता है तो क्या करेंगे। बॉटम को कोई नहीं जानता और बॉटम को पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक बार मुझे याद है कि एक हमारे ज़माने के कॉमेडियन थे केशव मुखर्जी, उनसे एक बार न्यू ईयर डे में किसी ने पूछा कि आप कभी पीक पर थे और आप आज बहुत नीचे गिर चुके हैं पॉपुलैरिटी के मामले में, तो आपको कैसा लगता है। उसने बोला, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट जवाब था, कि पिक अगर आप नीचे ना गिरे तो पिक का डेफिनेशन कैसे होगा। उसी तरह से चाहे बॉटम हो चाहे पिक हो, अगर बॉटम का डेफिनेशन तभी बनता है जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, उसी तरह से पिक का डेफिनेशन तभी बनता है जब प्राइस गिरना शुरू होता है। सो यह कोई नहीं जान सकता कि उसने कब पिक या बॉटम अचीव किया। देयरफॉर अपने को क्या करना चाहिए, इन स्मॉल ट्रांचेज, स्मॉल अमाउंट इन अ stocks which we have chosen for long term investment, we keep on investing and that will give you a huge benefit. So friends, इंडिया का इकोनॉमी लॉन्ग टर्म सिनेरियो बहुत ही पॉजिटिव है, वर्ल्ड बुलिश है इंडिया के ऊपर। सो इस तरह के जो सिचुएशंस आते हैं आइदर अपने कंट्री में या वर्ल्ड इकोनॉमी में, वह एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक को एक्वायर करने के लिए। इसलिए अपने को कभी पैनिक होकर के भागना नहीं चाहिए और अपने को एक प्लान्ड वे में सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक का एक्विजिशन करना चाहिए। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एक जोखिम भरा एंडेवर है। इसलिए स्टॉक इन्वेस्ट करने से पहले या तो आप स्वयं रिसर्च करें या फिर स्टॉक एडवाइज़र से कांटेक्ट करें। बिना उसके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल पर्पस है, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है, आप तक यह पहुंचाने की कोशिश की है कि जब भी बाजार गिरे आप बाजार से भागे नहीं। इनफैक्ट बाजार का गिरना हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अच्छे स्टॉक एक्वायर करने के लिए। यह संभव है क्या कि जो अच्छा स्टॉक लाइक एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, जब दिन अच्छे हो तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस तरह की स्थिति को आप इसकी प्रतीक्षा करते रहें, जब भी आपके सामने आता है उसको भरपूर यूटिलाइज करें और इसे मैक्सिमम लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।